We are having one guest from ISKCON. A little introduction about the guest. He is Jagannath Das from ISKCON. He is also an ex-student from Navodaya Vidyalaya, batch 1993. First rank in Cambridge Standard and JNP Jalgaon. Coming to the next, second rank in 12th Standard in Nashik Division Board. Next, BTech in Mechanical Engineering from VJTI College, Mumbai. While he is a very great person in ordinary way. Next, full-time devoted in ISKCON, International Society for Krishna, and he is 8-year lecturership in 3 engineering college. And Mumbai. Till now 163 GNVs of 18 states and 6 union territories of 7 NPS regions visited in the last 2 years. For the talks of life skills and values. Also, 1,000 plus public schools and colleges visited for value education. Let's begin for him now. Your Subhasini. So I thank our respected principal man, VP sir, our teachers, to give me the heartfelt welcome here at JNV Karimnagar of Telangana State. Today is my 164th JNV visit in last 2 years. I feel happy to be with you. Good evening here. I wish you all good evening. People are happy to see me. Your elder brother Anna from Maharashtra, Jalgaon district, passed out in 1998, long back, 27 years back. But still, I could not forget my happy days of Navodaya. I remember all those days, and last almost 2.5 years, I'm traveling all over India for my services of sharing knowledge of life science and then life values and skills. Why? It's very important to know ourselves first. Life science. We study physical science, we study chemical science, we study so many sciences, social science, economic science, hundreds of sciences are there, or countless are there. You may say any science. Science means knowledge, study of any field, science. But the most important, the highest knowledge is life science, life knowledge, or we can say self-knowledge.
Biology is supposed to be life science, isn't it? Biology is supposed to be life science. But in biology, nothing is there about life. Nothing is there about life in biology. What do you think? Biology is only about study of bodies. Plant bodies, we say botany. Animal bodies, we say zoology. Human body, we say anatomy. But nothing about mind, which is so important in life. Mind, so important. Intelligence, so important. But nothing about intelligence in the biology or even medical science. That MBBS, MD, MS course, I have seen the books, syllabus. Nothing is about our mind, so important. Intelligence and ego also. Ego, so important. Ego is our identification, identity, our understanding of self, ego. There are two egos. When the ego is not real, that becomes a problem. False ego. हम बोलते भी हैं कि आप अपना झूठा अहंकार दिखाते हो जो शोभा नहीं देता है. अहंकार शुड बी रियल मन, सच्चा स्वाभिमान जो हम हैं वो समझना. Whatever we are, to consider that is the real ego. If the 6th class students consider themselves as 10 class students, that is false ego. Simply because of body size. Oh sir, my body size is like 10 class students, so I will sit now in 10 classes. That is not good. Why? Your position is now 6th class. So ego should be there. Without ego, we cannot exist. What is ego? Our self-understanding or self-identity. Our position, our status, which should be the real one, factual, not the false one. Now, the most important thing, the soul, the self, without which no life can exist in the universe. Without soul, we say jiva. Without jiva, there cannot be any jivana anywhere in the universe, creation. But in biology, in medical science, modern MBBS, MD, MS course, nothing is there about jiva. So it's very big misfortune or lamentable thing. दुख की बात है कि बोलते तो हैं जीव का विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, लेकिन जीव के विषय में कुछ भी नहीं बोलते हैं. केवल बॉडी का स्टडी है. बच्चों, हम समझते हैं बॉडी में हाथ नहीं होगा तभी जीवन चलता है. दोनों हाथ नहीं, दोनों पाँव नहीं हैं, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, जीते हैं. जीवन बॉडी पार्ट से नहीं है, जीवन बॉडी से नहीं है, जीवन मन से भी नहीं है. कभी कभी मन जो है ना, किसी का पागल हो जाता है, किसी का बिगड़ जाता है, अनकंट्रोल रहता है, तब भी जीवन चलता है. किसी का बुद्धि मंद होता है, कम होता है. somebody has intelligence, less intelligence. किसी का बुद्धि कम होता है. some people have less intelligence. Still life goes on. But without the jiva, even though body may be fit in all the ways, life cannot exist. What is that jiva? Our self, real self. When that is gone out of body, we say our grandfather, our grandmother passed away, left us. Even though body is in front of us, उनकी डेड बॉडी जो है अपने सामने होती है, तब भी हम क्या बोलते हैं? our दादा दादी नाना नानी छोड़ के हमको चले गए. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर रियल सेल्फ. अवर JNU logo, yes it is there. JNU logo has 2 words down bottom side. 2 words are there. What is that? What words are there? Prajnanam. You can sit down. You can sit down. Go there. Sit down there. Comfortably. Sit down. Prajnanam Brahma. Can someone of you tell me the meaning of that 2 words? What is the meaning of Prajnanam Brahma? Anybody from girls' side first?
We say ladies first, so girls first chance to answer. What is the meaning of the two words Pragyanam, Brahma? If you know, you can show a hand and stand up. Boys side, chance passed. Intelligence. Your name? Hitesh is saying the meaning is intelligence is divine. But beta, intelligence sometimes is of many kinds, many types. Somebody has intelligence to cheat others. Somebody has intelligence to kill others, to exploit others, to harm others. Many people are there in the world who have intelligence, but their intelligence is not good one, bad one. So bad intelligence is not divine. Many times it is mentioned in nowadays schools in the walls, intelligence is divine or knowledge is divine. But all knowledge is not divine. All intelligence is not divine. So that's not the exact meaning. Two words are there. Jnanam and Brahma. Jnana means knowledge. ज्ञान मीन्स नॉलेज। आगे क्या जोड़ दिया है? प्रेफिक्स प्र, सिद्धि प्रसिद्धि। वैसे क्यों जोड़ दिया है? टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट नॉलेज और द सिग्निफिकेंस, द वैल्यू ऑफ दैट नॉलेज। प्रज्ञानम, द हाइएस्ट नॉलेज इज ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। What is Brahma? In Vedas, Vedic science, two words are there about the identity of all the living beings. दो शब्द है कि सभी जीव जो है दुनिया में उनकी पहचान क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो किसके हैं। शब्द आपने सुने होंगे, आपने you might have heard those words. अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं कौन हूँ? अहम, मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मास्मि, कि मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। भगवान को बोलते हैं त्वज ब्रह्म ना, आत्मा परमात्मा। वैसे हम कहलाते हैं जीव ब्रह्म, भगवान को कहते हैं त्वज ब्रह्म, मतलब सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम ब्रह्मन। सो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोल सकते थे। अहम देहोस्मि, अहम शरीरस्मि, शरीर ना, शरीर बॉडी नहीं, लेकिन नहीं कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में नहीं कहते हैं आई एम बॉडी, हम बोलते हैं माई बॉडी इज फैट, माई बॉडी इज दिस दैट, ऐसा बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं सर आई एम बॉडी सर, नो बॉडी सेज आई एम बॉडी, वी से माई बॉडी मीन्स व्हाट, दैट इंडिकेट्स वी आर सेपरेट फ्रॉम दी body. Body is always changing. Body is always changing from the day of birth. What day of birth? From day one we entered in the womb of mother. 9 months we stayed in the womb of mother. माँ की पेट में हम 9 महीना थे, और 9 महीना भी अपना बॉडी हमेशा बदलते रहा। Day one it was like a small seed. Day one that baby was a small seed, and that seed became a baby in 9 months, ready to come out, get delivered outside, and then we took birth. We say we took birth. Actually our age should be 9 months plus further time. Because 9 months we have spent in our mother's body. That 9 months also is our age. So always in Vedic culture, they consider 9 months in the womb also as an age, lifetime. So we should know that, not just that, oh, the day we came out is our from day one. No, 9 months we spent in the mother's body. The point is that body is always changing, always changing. But we don't feel as an individual we change. Your amma will never say, my child is, sir, change now. Now my child has become Navodaya child. She will never say, my child is now studying Navodaya school, but my child, sir, same child who was born, who was 9 months in my body. Very important point. The world keeps changing. Society keeps changing, body keeps changing, our mind, thoughts keep changing, our intelligence level keeps changing.
Our ego, position, status keeps changing, but unchanging thing is ourself. That is known as Jiva, Brahma. Very important. The problem is that in the name of modern science, we have ignored, we have removed, neglected Vedic science, which is about all the kinds of knowledge, all kinds of knowledge. Veda means Jnana, knowledge. You see, we worship goddess Saraswati, Sharda Ma. We worship Sharda Ma as a goddess of learning, विद्या की देवता. हम क्या बोलते हैं, जो माता सरस्वती है वो कौन है, विद्या की देवता है, goddess of learning. And she has 4 hands. In 2 hands she plays veena to sing the glories of Supreme Lord. भगवान का गुण गाती है 2 हाथों से वीणा बजाकर. एक हाथ से भगवान का नाम जपती है माला लेके. आपने देखा होगा. विद्या की देवता जो है देवी सरस्वती, जिससे सब विद्या आती है, वो भी भगवान का नाम जपती है. क्यों? भ्राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते. भगवान का नाम जो है भगवान जैसा परम पवित्र है, शुद्ध है, महान है, शक्तिमान है. और एक हाथ में उनके वेद है, बुक्स है. आपने देखा होगा माता के हाथ में बुक्स होते हैं. वो कौन सी बुक्स है? वेद. और वेद ज्ञान कहाँ से आया? पहले ज्ञान आया ब्रह्मा जी के पास. भगवान जो नारायण भगवान हैं, विष्णु भगवान, उन्होंने पहले बार ज्ञान वेदों का किसको दिया? जो पहले जीव है, पहले जीव किसमें? पूरे ब्रह्मांड में. तो उनका नाम क्या है? ब्रह्मदेव. देखो नाम कैसे दिए गए हैं. यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड. अंडे के समान है, अंडे का आकार का है, एक शेप. उसको कवच भी होता है, कवच, शेल. ईच यूनिवर्स हैज़ गॉट शेल, अ थिक शेल. ईच यूनिवर्स हैज़ गॉट हाफ वाटर. जो स्पेस होता है यूनिवर्स में ब्रह्मांड में आधा पानी होता है शेल के अंदर. अब ये सब ज्ञान जो है मॉडर्न साइंस के लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी सोच नहीं पाएंगे. क्यों? उनकी बुद्धि, उनकी कल्पना छोटी सी है. लेकिन जो दुनिया बनाए हैं, जो दुनिया चलाते हैं, दुनिया को संभालते हैं, उन्हें ज्ञान है कि दुनिया कैसी बनी है, कब बनी है, कौन बनाया है, क्यों बनाया है, सब ज्ञान है. और उसे बोलते हैं वेद. जब भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है. तो पहले जीव कौन है ब्रह्मांड में? ब्रह्मदेव. उनको सवाल आता है मन में. ही गेट्स अ क्वेश्चन, हु एम आई, हु आई एम, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट इज दिस यूनिवर्स. सो ही गेट्स क्वेश्चंस. एंड देन हियर्स 2 अल्फाबेट्स, तप, 2 times. तप मतलब तपस्या. देन ही सिट्स फॉर तपस्या ऑन हिज लोटस. एंड देन after his tapasya, Lord comes, gives him darshan, and then the knowledge of Vedas was given to him. And that same knowledge we see in the hands of Mother Saraswati, Amma, Sharda Amma. The point is that Vedas, Vedic science is the first science, and the real science, the perfect science, the complete science, which is not based on defective, faulty, limited human research, human observation. You see, modern science is always changing. Why changing? Because it is based on human research, which is always has some limits, some defects, some fault. It is never complete. Human research will never be complete because human beings have shortcomings. Human beings have limits. We don't know about ourselves much. हम अपने विषय में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं. तो दुनिया कैसे बनी, दुनिया कौन बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते. आपको मैं यदि सवाल पूछूं, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, हम जो दुनिया में आए हैं जन्म लेके, वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड टेकिंग बर्थ, वेयर फ्रॉम वी हैव कम, हम कहाँ से आए हैं हमें याद नहीं, हमें पता नहीं. जो हम दुनिया में हैं, द टाइम वी आर इन द वर्ल्ड, इफ आई आस्क यू हाउ मच टाइम
यू विल बी स्टेइंग इन द वर्ल्ड। आपका जीवन का लाइफ टाइम कितना है? इफ आस्क यू योर लाइफ टाइम, you have no answer. I also have no answer. Nobody has answer. We don't know how much is our lifetime. We don't know. And if I ask you one more question, where will you go after leaving this body, leaving this world? Where will you go? Nobody knows. And what do we know? Nothing. Whatever we think I know, it's only relative thing. Relative. It's not absolute truth. It is only relative. ये अपना सापेक्ष बोलते हैं ना, रिलेटिव है। सम आइडिया है, सम इमेजिनेशन है, सम अपना अंडरस्टैंडिंग है। द पॉइंट इज दैट इफ वी वांट टू नो द ट्रूथ, देन ओनली वे टू नो द ट्रूथ इज लिसनिंग फ्रॉम द पर्सन हु नोज द ट्रूथ। जो सत्य जानते हैं उनसे सुनना एकमात्र उपाय है। ये नहीं कि हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से समझ लेंगे सत्य क्या है। नहीं, क्यों? हमें अपने पिताजी कौन हैं, अपने पिताजी कौन हैं, ये भी हमें माता के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वी हैव टू बिलीव द वर्ड्स ऑफ मदर। माँ जो बोलेगा ये आपका पिताजी है, हमें बिलीव करना पड़ता है। हम वहाँ रिसर्च नहीं कर सकते। नो नो मदर, आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स, आई विल रिसर्च। डीएनए सब टेस्ट करेंगे सबका, कौन किसका मैच होता है। नो, द पॉइंट इज दैट यू वांट टू नो अवर फादर, वी हैव टू बिलीव द वर्ड्स ऑफ मदर। इन द सेम वे, टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स, द ओनली वे इज to hear the words of God, who has created, who has manifested, who has designed the world. देखिए, आप लोग अच्छे पेंटिंग बनाते हैं नवोदय में, ये बात तो नहीं होती है कि पेंटिंग जो है, द पेंटिंग्स आर मेड बाय फ्लाइंग कलर्स ऑफ होली व्हेन यू प्ले होली। कि होली के जब रंग उड़ाते हैं बच्चे तो उससे पेंटिंग बन जाता है? कभी नहीं बनता है। सादा पेंटिंग बनाने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, एक कला चाहिए। और दुनिया इतना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल द वर्ल्ड इज, एंड टू मेक दैट वर्ल्ड, डू यू थिंक नोबडी इज रिक्वायर्ड? देयर मस्ट बी समवन ऑलमाइटी हु हैज़ प्लान्ड दिस वर्ल्ड। आप देखिए, मॉडर्न साइंस के नाम पे हम जो पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, कि दुनिया कैसे बना, तो क्या बोल देते हैं, बिग बैंग से बना होगा। कल्पना है किसी का, इट्स अ थ्योरी, कल्पना, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन, कि माइट बी द केस, लेकिन जिसमें कुछ सेंस नहीं है। क्यों? एक्सप्लोजन से, बिग बैंग से कुछ बनता नहीं है। छोटा स्फोट करने से छोटा कुछ बनेगा, वस्तु बनेगा? नहीं बनेगा। एक्सप्लोजन मीन्स डिस्ट्रक्शन। एक्सप्लोजन मीन्स व्हाट? डिस्ट्रक्शन। हम लोग दिवाली में बॉम्ब फोड़ते हैं ना, सुतली बॉम्ब बोलते हैं या लक्ष्मी बॉम्ब बोलते हैं, सुतली बॉम्ब, उससे कुछ बनता है? कुछ बनता तो नहीं है। तो बिग बैंग मतलब क्या है? बिग एक्सप्लोजन। उससे कैसे दुनिया बन सकती है? और दुनिया अपना जीवन कैसे बना? और डार्विन का कल्पना है। क्या कल्पना है? 200 साल पहले उनको लगता था केमिकल जो है ना, अमीनो एसिड्स मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा। बच्चों, बोलने का मतलब इतना ही है, मॉडर्न साइंस जो है उसका एक लिमिट है, उसका एक, हाँ, मॉडर्न साइंस ने हमको माइक दिया है, हमको फैन दिया है, हमको प्लेन दिया है, ठीक है, टीवी दिया है, मोबाइल दिया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए इसमें एक लिमिट है। यदि यही माइक यदि फॉल्टी हो जाए, किसी का जान भी ले सकता है। यदि कोई वायर, कोई कनेक्शन फॉल्टी हो जाए, यहाँ कुछ फॉल्ट हो जाए, किसी का टच होने से, शॉक लगने से डेथ भी हो सकती है। ऐसा होता है कभी कभी कि जब कोई फॉल्ट हो जाता है मशीन में, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया, लंदन वाला। क्यों प्लेन क्रैश हो गया? गलती हो गई कि जो पायलट था, जो लोग थे जिनको टेस्टिंग करना था प्लेन का, उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका इंजन जो है फेल होने वाला है। उनकी इंस्ट्रक्शन में वो समझ नहीं पाए, उनको ध्यान में नहीं आया। क्यों? वी ऑलवेज हैव लिमिट्स। द पॉइंट इज दैट वी शुड नो that God is there, who is
the supreme source, supreme mother father of all living beings. हम जो प्रेयर बोलते हैं ना उधर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, आगे धरती पूजा स्थान। आप गाते कभी? गाते तो होंगे, ये भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। कभी सुना है? कभी गाते आप लोग? नहीं गाते? यहाँ पे इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वो दाता कौन है? भगवान, जो जीवन दिए हैं, मन का विश्वास कमजोर हो न। सो प्रेयर, आप मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं शांत नहीं हैं। बेटा प्लीज़ थोड़ा सेंस दिखाइए कि है बोल के। नहीं है तो अलग बात है, लेकिन है तो थोड़ा दिखाओ कम से कम कि सेंस है। हम अपना जीवन दिए हैं इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? इसकी आवश्यकता है। हम जब देखते समाज में, आज लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन बहुत लोग नशा से बच नहीं पाते, नशा के शिकार बन जाते हैं। कितने डॉक्टर? सभी नहीं। जिनको ज्ञान है वो कभी शिकार नहीं बनते नशा के, लेकिन जो आत्मज्ञान नहीं जानते, दिव्य ज्ञान, जो जीवन का ज्ञान नहीं जानते, वो नशा के शिकार हो जाते हैं, वो संयम दिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है हमें। सभी गलत आदतों से, नशा से, दुर्गुणों से, दुर्गुणों से बचने के लिए आवश्यकता है। हमने अपना जीवन दिया है पिछले 13 साल से इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? समाज की इसकी आवश्यकता है। आज जो समाज में समस्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, नशा, क्यों है? आतंक। क्यों? क्योंकि लोग जीवन का ज्ञान नहीं जानते हैं। लोग शिकार बन जाते हैं किसके? काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड, मोह, इल्यूजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, मत्सर, द्वेष। हिंसा क्यों होती है? द्वेष की वजह से। दूसरों का द्वेष होता है, लोग हिंसा करते हैं। बच्चों, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें पढ़ना है, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जीवन को, स्वयं को भी समझना आवश्यक है। we have to study our subjects, but along with that we should know our life also. Why? This life is not for all time. This body is not for all time. We don't know even how much time we have. That's why it's important to know our real self. Life science. Last point I will speak about life science, then I will speak about life values, life skills for 20 minutes. Life science, last point is that our real self is a divine part of Supreme Lord. हम भगवान के अंश है। जो प्रेयर्स कभी गाते हैं पूजा के बाद, आरती के बाद, वर्ष के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। कभी सुना है आपने? हैव यू हर्ड दिस प्रेयर? कभी गाते हैं पूजा के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा। किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। आगे, तुम्ही हो साथी। भगवान अपना साथी है, जीवन साथी सदा के लिए। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। भगवान के बिना सदा के लिए अपना कोई नहीं है। ये शरीर भी अपना सदा के लिए नहीं है, थोड़े दिन के लिए है। जो भी है, हमेशा हमें शरीर कोई ना कोई प्रॉब्लम देता रहता है। बॉडी गिव्स प्रॉब्लम, बॉडी गिव्स चैलेंजेस, बॉडी गिव्स डिफिकल्टीज, बॉडी गिव्स पेन। अभी आप नीचे बैठे हैं, यू आर सिटिंग नाउ डाउन, it becomes difficult sitting also for long time. If I tell you stand up, standing also becomes difficult for a long time. If I tell you lie down, that also becomes difficult for a long time. So body never gives comfort, body always gives some discomfort. So we should know our pleasure, our joy is not
of the body is of the soul. Why? That soul has the nature of Sat Chit Ananda. Body nature is Asat, temporary. Asat means unchanging. Body keeps changing. Asat. But Atma, Jiva is Sat, permanent, Shashvat. Ajanma, Amar. Body takes Janma, so body has Mrityu. Beginning end body has. But soul has no beginning, no end. Why? The soul is a part of God. And the fact, how do we know that we are parts of God? We are soul. How do we know? Simple point. We all desire. Last boys, middle boys, please pay attention. 20 minutes only. We desire to have life which should be all time. We desire to live all time. Isn't it? We desire to live if possible all time. Not just living. We want to be young always. We want to be young. लोग तो अपना बाल सफ़ेद हो जाए इतना टेंशन में आ जाते हैं. लोगों को सफ़ेद बाल भी नहीं चाहिए, हमेशा काला करते रहते हैं, छिपाते रहते हैं अपना बाल, सफ़ेद बाल. क्यों? दिखने में भी हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं. लोग काला क्यों करते हैं बाल? क्योंकि क्या दिखना चाहते हैं? यंग दिखना चाहते हैं. जवान, अभी तो हम जवान हैं, दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जवान हैं. तो बच्चों, ये सत्य है कि हम हमेशा जीना चाहते हैं. केवल जीना नहीं, हम युवा भी होना चाहते हैं. हमेशा हेल्दी चाहते हैं, हेल्दी, कि हम कभी बीमार ना हो चाहते हैं. क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम हमेशा सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं. क्योंकि आत्मा जो हम हैं वो कभी बूढ़ा नहीं बनता है. जो हम आत्मा हैं वो कभी मृत्यु नहीं पाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है. कितनी अच्छी बात है कि हम जो आत्मा हैं उसका स्वभाव क्या है? सत, परमानेंट. चित, चित मतलब चिन्मय. बॉडी हैज़ नो नॉलेज. बॉडी इज विदाउट नॉलेज. But the soul has knowledge. Soul is conscious. See, dead body is not conscious. Dead body becomes unconscious. Now the body is conscious. Why? We are there in the body. The soul is there in the body, that's why the body is conscious. The moment we leave the body, body becomes unconscious. Unconscious body cannot have knowledge. So, body nature is without knowledge, unconscious. Yes, please. Our nature, soul nature is to be conscious, to be knowledgeable. Last point, soul, body nature is dukhamay, full of misery, pain, difficulty, discomfort. Body gives discomfort, challenges, pain. But the soul is anandamay, anandamay. Anandamayo Abhyasat. By nature, all the living beings, souls are blissful. Why? They are parts of God. So बच्चों, यदि हम इतना जानेंगे, हम सभी जो है भगवान के दिव्य सनातन अंश है. जो भगवान गीता में कहते हैं, जो भगवद गीता सारे वेदों का इसेंस है, सार, इसेंस. आप पीछे बोल सकते हैं, एक श्लोक हम बोलेंगे गीता का, जिसमें भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 15वें अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, उसमें हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, अपना स्वभाव क्या है, वो बताते हैं. प्लीज़ लिसन एंड देन ट्राई टू रिपीट बिहाइंड मी. मम एव अंश जीव लोके. बोलो. मम एव अंश जीव लोके. मम एव अंश जीव लोके. जीवभूत सनातनः. जीवभूत सनातनः. मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि. मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि. प्रकृतिस्थानि कर्षति. प्रकृतिस्थानि कर्षति. The Supreme Lord, who knows our situation
as mentioned in Bhagavad Gita, who we are, what is our situation. भगवान बोल रहे हैं मम एव अंशा, हम सभी जीव उनके, मम मतलब माइंड, मम एव, यो मीन्स सर्टनली, डेफिनेटली, मम एव अंशा, वी ऑल आर डिवाइन पार्ट्स ऑफ गॉड. मम एव अंशा कहाँ पे? जीवलोके. इस ब्रह्मांड को बोलते हैं जीवलोक, जहाँ जीव रहते हैं, है ना. ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक बोलते हैं ना, भूलोक. वैसे क्या नाम है ब्रह्मांड का? जीवलोक, जहाँ जीव रहते हैं. मम एव अंश जीवलोक है. ये जीव कैसे हैं? जीवभूत सनातन. ये जीव बोले सनातन है. सनातन का मतलब क्या होता है? परमानेंट, बर्थलेस, डेथलेस. बॉडी हैज़ बर्थ, सो डेथ ऑल्सो. सो नाइस टू नो दैट वी आर permanent living beings, parts of God, like हनुमान जी. आगे क्या है? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति. कर्षति मतलब स्ट्रगलिंग हार्ड. वी आर नाउ इन दिस वर्ल्ड स्ट्रगलिंग हार्ड विथ आवर 5 senses and mind. मन षष्ठानि, mind is a 6th sense. Mind is known as 6th sense. मन षष्ठानि इंद्रियानि, senses. We are struggling with our mind and senses in this world. In biology, topic is there, struggle for existence. We all living beings in this world struggle hard just to survive our body, just to exist. We struggle hard. We always have danger to lose the body, of diseases. We have dangers of disease. We have dangers of old age and death. So we struggle hard in this world for just living. तो बच्चों, हमें इतना ही समझ में आ जाए कि हम जो है भगवान के धाम से हम आए तो हैं कहीं से. ये तो नहीं कि हम ऐसे केमिकल से बन गए. नो, सी केमिकल से भी जीवन आया होता तो हमें भावना, चेतना, सुख दुख, विचार, इच्छा नहीं होती. केमिकल में कोई विचार नहीं होता, इच्छा नहीं होती है, कोई भावना नहीं होती है. केमिकल्स हैव नो इमोशंस. केमिकल्स एंड फिजिकल आइटम्स हैव नो इमोशंस, बट वी हैव consciousness, we have emotions, we have feelings, we have pain, pleasure. Why? We are living beings, souls. If you understand this one point कि हम भगवान के धाम से आए हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा. We will have no fear of death and nothing else. Anybody who has no fear of death, he will have no fear of anything in this world. जैसे मृत्यु का भय नहीं, उसे किसी दूसरे को एक चीज़ का भय नहीं हो सकता है. तो बच्चों, ये ज्ञान बड़ा महान है जो हमें चिंता से, भय से, दुखों से मुक्ति देता है. क्या ज्ञान? कि हम जो है ये दुख देने वाला शरीर नहीं है. हम शरीर में रहने वाले कौन है? जीव है, ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म. हम एक भगवान के अंश आत्मा है, जो एक व्यक्ति है जो कभी बदलता नहीं. ओके, जैसे आप लोग जो है, यू ऑल हैव कम दिस स्कूल फ्रॉम योर फादर्स प्लेस, नेटिव प्लेस. आप लोग स्कूल सब कहाँ से आए हैं? अपने अपने गांव से आए हैं. कहाँ से आए आप लोग स्कूल में? आप अपने गांव से आए. इसीलिए आपको वेकेशन में स्कूल छोड़ना अच्छा लगता है. वेकेशन में ये नहीं, सर मैं वेकेशन नहीं जाऊंगा, मैं 9 दिन नहीं छोड़ूंगा सर, मैं यहीं जीऊँगा और यहीं मरूंगा, मैं 9 दिन नहीं छोड़ूंगा. ऐसा कोई नहीं बोलता है. वी हैव कम टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स एंड वी विल गो बैक टू आवर नेटिव प्लेस फॉर सर्विस. कम टू लर्न, गो टू सर्व. वी हैव नो पेन टू लीव द स्कूल आफ्टर आवर स्टडीज, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ से आए. वी नो वेयर फ्रॉम वी हैव कम. सो वी हैव नो pain, we have no any bad feelings to leave the school. We will remember our school, we will not forget our school, but we will not be crying to leave our school. We will happily go for our services in our native places. The same point I am speaking about life. यदि हम जानेंगे, if we know हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से, तो हमें पता होगा मृत्यु
के समय हमें कहाँ जाना है? जहाँ से आए हैं। मृत्यु अपना नहीं होता है। बॉडी हैज़ एंड वन डे बट सोल हैज़ नो डेथ। दैट इज द पॉइंट आई एम स्पीकिंग। ओके बॉयज, आई विल नाउ स्पीक अबाउट द लाइफ वैल्यूज। Why life values? Values make our life valuable. Values make our life valuable. We should know that life value is unlimited. Life value is unlimited. No amount of money can be compared with a life. जीवन का जो मूल्य है दुनिया की संपत्ति में, पैसे में नहीं हो सकता। Why? Life is divine. Life is divine. Life is most valuable. The point is that to make this life really valuable, we should have some good values like respect for others. Respect for others. Why respect for others? Because in giving respect to others, we also receive respect. In English, one famous saying is there. What is saying? In giving, we receive. What is the saying? Please repeat. In giving, please say loudly. In giving, we receive. हिंदी में मतलब होता है देने में हमें मिलता है। हाँ, किसी को गाली देंगे तो बदले में फूल नहीं मिलता, बदले में फूल की माला नहीं मिलती, बदले में क्या मिलता है? गाली ही मिलता है। किसी ने किसी को थप्पड़ दिया तो बदले में क्या मिलता है? थप्पड़ ही मिलता है, गुलाब जामुन नहीं मिलता। एक्शन रिएक्शन है ना, तो हमें बुद्धि होनी चाहिए। वी ऑल आर brothers sisters. We sing the plays in the morning, है ना? All Indians are my brothers and sisters. We should follow it. We should accept it. Why? We have common father, common mother. Who is that? हम सबका एक भगवान हो। भगवान अपने माता पिता है, हम सब भाई बहन बनते हैं। God brothers, God sisters. We say God brothers, God sisters. Point is that if we know our real position, our real self, we will respect all living beings. That's why our culture says, Indian culture says Vasudhaiva Kutumbakam. Not just India, but the whole planet is our family. Vasudhaiva, one planet, whole planet is our family. That's why we should respect each other. All our brothers, our sisters. Next point, we must be thankful to our teachers, our parents, our society, our country and Supreme Lord. हमें भगवान के प्रति, सबके प्रति धन्यवाद देना चाहिए. We should thank others. Why? We receive so much from others. We always receive so many things from others. So we should thank. ऐसा बोलते हैं, one who is not grateful, thankful. One who is not grateful, he becomes the great fool. He becomes the great fool. जो ग्रेटफुल नहीं होता है, धन्यवाद नहीं देता है। बच्चों, हमें नवोदय में सब अच्छी सुविधा मिलती है। ये टीचर्स हमें हमेशा प्रेम देते हैं, ध्यान देते हैं, संभालते हैं। इन्हें माता पिता के समान सम्मान देना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हमें जो मिलता है उसका हम सदुपयोग ले सकें। इफ़ वी डोंट रिस्पेक्ट, वी डोंट फील थैंकफुल, वी मिसयूज अवर फॉर्चून, वी मिसयूज अवर fortune. One value is honesty. One value is honesty. We say Satyameva Jayate. Truth always wins. That's why better is always speaking truth. So that we never have any anxiety, we never have any problem and any fear. Next value is clean. Being clean. We say cleanliness is next to godliness. स्वच्छता ही सेवा है। इसलिए हमें अपना बेडिंग, अपना कपड़ा, अपना जो भी है वस्तु, सब कुछ बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स स्वच्छ रखना चाहिए।
I'll speak about last value, that we must be humble enough to value others. ऐसा बोलते हैं विद्या विनयेन शोभते. क्या बोलते हैं? विद्या, नॉलेज, विनयेन शोभते. अवर नॉलेज बिकम्स ब्यूटीफुल. यस प्लीज, लास्ट 5 मिनट है. सुनना है आपको 5 मिनट, वॉइस सुनना है 5 मिनट, प्लीज पे अटेंशन. हम आपके लिए आए हैं, हम आपको अपना मानते हैं. आप हिंदी समझते हैं? हिंदी समझते हैं? थोड़ा नहीं थोड़ा समझते हैं. हिंदी हमें आना चाहिए. विद्या विनय शोभते. अवर नॉलेज बिकम्स ब्यूटीफुल बाय हम्बलनेस. हम्बलनेस. वी शुड बी हम्बल. We should have humility. Humility we should have. We should not be proud unnecessarily to insult others, to disrespect others. Last topic, life skills. See, I can speak for months together about this topic, but in short time, 40 minutes, I will speak the most important essential topics or essential points. Life skills. There are काउंटलेस लाइफ स्किल्स. अनेक स्किल होता है. कैसे सुनना है, लिसनिंग स्किल. कैसे बोलना है, स्पीकिंग स्किल. कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्टडी स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स. अनलिमिटेड स्किल्स आर देयर. पेंटिंग स्किल्स, प्लेइंग स्किल्स. In Bhagavad Gita, Lord Krishna has mentioned that yesterday was Yoga Day. International Yoga Day. Yesterday was Yoga Day. In Bhagavad Gita, Lord Krishna has mentioned in 3rd chapter of Karma Yoga, what is the highest skill? What is the highest skill? And having that skill, we can cultivate, develop other skills. In IIT logo, last voice, please pay attention. Only 5 minutes. I will stop them. In IIT logo, 3 words are there, taken from Bhagavad Gita, 3rd chapter, Karma Yoga. What words are there? Yoga कर्मसु कौशल. पीछे बोल सकते हैं. योग कर्मसु कौशलम. The it means that in all our activities, in all our karma, in all our कार्य, सभी अपने कर्मों में, सभी अपने कार्यों में, in all our activities, कर्मसु, the highest skill, कौशलम, is yoga. योग है जो है, योगा सभी कर्मों में सबसे बड़ा स्किल है. सभी कर्मों में. योग का मतलब क्या है? योग का मतलब केवल आसन नहीं है. आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, होगा योग. नो. The real meaning of yoga is a small part. Asana and pranayama is a small part of Ashtanga yoga. No, 8 limbs are there. Ashtanga yoga, 2 limbs only. Asana, pranayama. But the main meaning of the real meaning of yoga is to connect with our source. जो अपना सोर्स है, स्रोत, जो अपना स्रोत है, जहाँ से अपना जन्म हुआ है, या हम जिसके हैं, जहाँ से अपना उगम हुआ है, उनसे जुड़ना, जहाँ से हम शक्ति ले सकते हैं. भगवान से जुड़ना का मतलब होता है योग. और 4 योग है मुख्य: कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग. मुख्य बात क्या है? भगवान से जुड़ना. क्यों? जैसे छोटा बच्चा जो है, स्मॉल बेबी, if small baby is with mother, he gets all the necessities fulfilled by mother. In the same way, if we connect with our Supreme Mother, Supreme Father, then all our desires, all our problems, all our needs will be fulfilled by the Supreme Lord. भगवान जो है हम सबकी इच्छाएं, हम सबकी आवश्यकताएं पूरा करते हैं. अभी भी करते हैं. हम माने ना माने, भगवान सबकी इच्छा पूरा करते हैं. लेकिन हमें सुख नहीं लगता. क्यों? हम भगवान को मानते नहीं हैं. तो बच्चों, लास्ट पॉइंट इज दिस, दैट we must have this understanding, this knowledge that this world is not by chance. Our life is not by chance. This world, our life has some purpose. And somebody is there to design it, to plan for it, and to
कोऑर्डिनेट इट, somebody is there to control it. अपना जीवन का कंट्रोल अपने पास ज़्यादा नहीं है, भगवान के पास है। यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, हमें चिंता नहीं होगी, हमें कोई भय नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई समस्या नहीं होगी। ये हमने अनुभव किया है। I will end with small prayer. You please join your hands. आप लोग हाथ जोड़िए। हम थोड़ा 2 मिनट का प्रेयर बोलते हैं, फिर अपना सेशन खत्म होगा। आपका मेस टाइमिंग कितना बजे है? मेस टाइमिंग आज संडे है, कितने बजे है? 8 बजे। ओके, वी हैव टाइम समथिंग। यदि आपके किसी के मन में कोई सवाल है, कोई किसी का डाउट्स है, कोई किसी का समस्या है, प्रॉब्लम है, तो हम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो। ओके, प्लीज़ सीट प्रॉपरली। सब लोग ऐसे सीधा बैठो। सावधान, क्या बोलते हैं स्कूल? सावधान, सीधा बैठना। जॉइन द हैंड्स विथ योर चेस्ट, प्लीज। प्रेयर पोजिशन एंड देन क्लोज योर आइज। साइलेंस प्लीज, थोड़ा शांत हो जाओ। जो मैं बोलता हूँ सुनना है, पीछे बोलने का प्रयास करना है। विल बिगिन विथ अवर ओमकार, विच इज़ अवर हैबिट इन नवोदया। ओमकार, ओम। पहले सुनना है, मैं जो बोलता हूँ पीछे बोलना है, ठीक है? ओम, बोलिए। सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Slowly you can open your eyes now. तो आपको कुछ अच्छा अनुभव आ सकता है कि मन जो है अपना शांत होता है, सब विचार जो यहाँ वहाँ अपने मन में आते हैं तो निकल जाते बाहर, और हमें थोड़ा मुक्त लगता है, तनाव मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। तो हमने अनुभव किया है अपने जीवन में कि भगवान का नाम लेना सबसे महान और सबसे आसान काम है। भगवान शंकर महादेव में माला जपते हैं, नाम जपते भगवान का। हनुमान जी जो शक्ति बुद्धि पाते भगवान से, नाम जपते हैं। माता सरस्वती विद्या की देवता जो है वो भी नाम जपती है भगवान का। ब्रह्मदेव भगवान का नाम जपते, क्यों? भगवान का नाम में भगवान का शक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते। हमने अनुभव किया है अपने जीवन में। कम से कम 2 मिनट 5 मिनट सुबह शाम कभी ऐसा लगे थोड़ा गड़बड़ है, मन शांत नहीं है, शांत होके भगवान का नाम लीजिए। एक वो प्रेयर भी गाते कभी स्कूलों में, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम। ऐसा भी प्रेयर गाते हैं कि भगवान का नाम लेना जो है, अपने माता पिता का नाम लेना है। आप जो भी मानते हैं, जो भी भगवान का नाम आप मानते हैं, आपकी श्रद्धा है, ले सकते हैं। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी लोग सभी धर्मों में भगवान का नाम जपते हैं जो वो लोग मानते हैं। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के स्वरूप, भगवान के फॉर्म रूप अनंत हैं। उनकी उपासना की पद्धति, पूजा की पद्धति भी अनेक है। आप जो भी मानते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम कोई तो रूप में भगवान को मानिए और जुड़िए। उससे आपको शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमने जीवन में अनुभव किया है। सारे जीवन के कौशल, सारे जीवन की मूल्य हम भगवान से जुड़कर बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन का समाधान अनंत पा सकते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट। आपने बहुत ध्यान से सुना। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। आई थैंक आवर प्रिंसिपल मैम वंस अगेन, ऑल टीचर्स। थैंक यू to give me this opportunity to serve here at JNG करीमनगर। आपको अच्छा लगा? कुछ पॉइंट्स कुछ आपको समझ में आया? कुछ जीवन के विषय में कुछ नया चीज़? तो हमें अपने जीवन को महान बनाने के लिए भगवान से जुड़ना है। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। सभी स्कूलों में प्रेयर तो गाते ही हैं। प्रेयर किसको बोलते हैं? प्रेयर भगवान को ही बोलते हैं। प्रेयर थोड़ी हम CM PM को बोलने वाले हैं। प्रेयर बोलना मतलब इसको बोलते हैं, प्रेयर भगवान को ही बोलते हैं। तो ये बोलते ही प्रेयर, तो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ये तो सच है कि भगवान है। ये सच है, कोई कल्पना नहीं है। यदि सच नहीं होता तो सदियों से, लाखों सालों से ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, विद्वान लोगों ने अपना जीवन भगवान के साथ कैसे महान बनाया होता। सत्य है, तभी तो सभी धर्मों में, सभी दुनिया में भगवान के भक्त है, ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, जिन्होंने जीवन का समाधान पाया है, सुख पाया है भगवान के साथ अपना संबंध जोड़कर। ओके, थैंक यू। Thank you for our teacher who allowed him to give something to students, and thankful for Jagannath Das Anna, our super senior. From the depth of my heart, I got so many things from you. Actually, he told me, if you are having here, then you have a eager to see your face again and again into mirror.
That's why I do my hair, sir. And the main thing is that children, you have to add some moral values in your life. That is the main motto. That's why I'm we there are here. till tomorrow. I'm there. They can come to me for asking questions tomorrow. I'm there. And he will here tonight. If you are having any doubts, you can connect with. Okay, students now from their side. Girls will go first. This was clear. Okay, from girls first, you can go to your houses.